Now let's see the exercise of subject and verb agreement. This is Let's Try 6 from your English course book volume 2 on page number 19. Underline the subject in the following sentences and write whether it is singular as or plural P. One has been done for you. You all have to read these all sentences and identify the subject in these sentences and underline them. Then also identify this subject is in singular form or in plural form. If the subject is a singular, then you will write here as, and if the subject is in plural form, then you will write here P. First sentence is My English book is in my bag. इस सेंटेंस के अंदर इंग्लिश बुक के बारे में बात की जा रही है, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वह होगा इंग्लिश बुक. बुक इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. बुक जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है, तो सिंगुलर के लिए हम यहाँ पर एस लिखेंगे. नेक्स्ट, मीना हेल्प्स हर मदर इन द किचन. In this sentence, we are talking about Meena. So, the subject of this sentence is Meena. And Meena is a singular person. Meena एक singular subject है. So, you have to write here as. Next, the children are cleaning their room. In this sentence, the subject is children because we are talking about children. And children is a plural naming word. Plural subject. Children जो है वह plural subject है, so we will write here P. Next, the women are carrying the basket of apples. Carrying the baskets of apples. In this sentence, the subject is woman and woman is in plural form. यहाँ पर women का plural form दिया गया है, तो हम यहाँ पर P लिखेंगे. Next, Rohan's artwork was exceptional. Rohan is a subject and Rohan is in singular form. Rohan इस sentence का subject है और वो singular form में दिया है, तो हम S लिखेंगे. Next, the car driver had a knee injury in the accident. Here we are talking about the car driver and car driver is a singular subject. So you have to write here as. Next, the students in my class study hard. Students means we have plural subject. So we have write here P. Next, my grandparents pump water out of the well. Grandparents is a plural subject. So you have to write here P. Now the second part of this exercise, let's try 6 is now identify and take the sentences which are in प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इन सेंटेंसेस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में दिए हैं और उन्हें टिक करना है. नाउ द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज हेल्पिंग वर्ब इज, आर एंड एम इज यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड आईएनजी मस्ट बी यूज्ड विथ मेन वर्ब. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सेंटेंस होते हैं उसमें इज, आर और एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है और जो एक्शन वर्ड या मेन वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है. नाउ वी कैन सी ओनली 2 sentences in the above sentences. The first one is the children are cleaning their room and the women are carrying the baskets of apple. Here helping verb are is used and ing is also used with the main verb means action words. Now the next exercise, let's try 7. Complete its sentences using the correct verb. इन sentences में आपको correct verb को choose करके fill करना है. You have to choose the correct verb according to the subject. Means if we have a singular subject, then you will use the verb in singular form means with as or es, and if we have the plural subject, then we will use the verb in plural form means without as or es. The sun shines brightly on the fields. इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है सन, ये सिंगुलर फॉर्म में है,
तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, मीन्स शाइन्स, मीन्स एस या ई एस वाली वर्ब यहाँ पर यूज की जाएगी। द नेक्स्ट, लता विजिट्स her grandparents during the summer vacation. Lata is a singular subject, so we will use here singular form of verb, means with as ya es. So the correct verb is visits, means Lata visits her grandparents during the summer vacation. Next, Sunita is are a sweet child. यहाँ सुनीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब is का यूज किया जाएगा। Next, this children eats a fruit every day. Children is a plural verb, plural subject. तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब मीन्स eat यानी बिना एस या ई एस के वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट, द एप्पल्स are kept on the table. Apples is a plural subject, so we will use are helping verb with this plural subject. My brother goes to school by car. Brother is a singular subject. Brother singular subject है, तो हम उसके साथ एस या ई एस वाली वर्ब यूज करेंगे। The teacher meets the children at school. इस सेंटेंस में द टीचर यानी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इस टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब यानी मीट्स का यूज करेंगे। Next exercise, let's try it. Match the following sentences and check to see whether the subject agrees with the verb in its sentences. In the left side, we have the subject, and in the right side, we have the object of the sentence, means complete sentence. लेफ्ट साइड में हमारे पास सब्जेक्ट दिए हैं और राइट साइड में सेंटेंसेस दिए हैं। करेक्ट सब्जेक्ट के साथ करेक्ट वर्ब को चूज करके हमें सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। नाउ फर्स्ट वन इज अशोका। अशोका इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है। मीन्स वॉज अ ग्रेट किंग, वॉज भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। नेक्स्ट, माई ब्रदर्स, ब्रदर्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, आर कमिंग टुमारो। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, अशोका एक महान राजा था। माई ब्रदर्स आर कमिंग टुमारो, मेरे भाई कल आ रहे हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इज वाली वर्ब यूज करेंगे। इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज गीता डूइंग टुनाइट, आज रात को गीता क्या कर रही है। नेक्स्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है, मुझे तुम पर गर्व है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज माई टर्न 2 फ्रॉम योर इंग्लिश प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 ऑन पेज नंबर 7. Read the following sentences, identify the error in each sentence and rewrite it correctly. One has been done for you. नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं इन सेंटेंसेस में कुछ एरर यानी कुछ मिस्टेक दी हुई है, उस मिस्टेक को आपको आइडेंटिफाई करना है और सेंटेंस को वापस से लिखना है। आपको जो एरर है वह सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में मीन्स वर्ब में मिलेगी, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज नहीं किया गया है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट वर्ब यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट सेंटेंस इज राधा वॉश द क्लॉथ्स ऑन सैटरडे। इस सेंटेंस में राधा जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब मीन्स वर्ब को एस या ई एस के साथ यूज करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में बिना एस के यूज किया गया है, तो हम इस वॉश में एस या ई एस लगाकर उसको वापस लिखेंगे। मीन्स राधा वॉशेस द क्लॉथ्स ऑन सैटरडे। नेक्स्ट, इट आर अ हॉलीडे टुमारो। इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इट के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आर दिया गया है, सो यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस, इट is a holiday tomorrow. Next, the girls walks on the grass in the park. Girls plural subject है
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब मीन्स विदाउट एस और ई एस यूज करते हैं. सो यू विल राइट दिस सेंटेंस, द गर्ल्स वॉक ऑन द ग्रास इन द पार्क. नेक्स्ट, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स इज इन द क्लासरूम. टीचर एंड द स्टूडेंट्स बोथ आर प्लूरल वर्ड्स. यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए भी बात की जा रही है, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज का यूज नहीं किया जाता है. नेक्स्ट, माई ग्रैंड पेरेंट्स इज इन टाउन. ग्रैंड पेरेंट्स इज ऑल्सो अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो इज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं किया जाता है. नेक्स्ट, माई मदर टीच मी स्विमिंग. मदर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस यूज किया जाता है. नेक्स्ट, वॉट आर दिस बॉय डूइंग. बॉय इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और बॉय है सिंगुलर फॉर्म में, तो सिंगुलर के साथ आर नहीं इज का यूज किया जाएगा. नेक्स्ट, चिल्ड्रन लर्न्स न्यू वर्ड्स. चिल्ड्रन इज अ प्लूरल सब्जेक्ट and with the plural subject we have to use verb without s or es. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा बिना s या es के यूज की जाती है. The next exercise, my turn 3. Circle the correct verb in each of the sentences below. One has been done for you. यहाँ जो सेंटेंसेस दिए हैं इनको आपको रीच करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट वर्ब को सर्कल लगाना है. माई फ्रेंड्स टॉक्स टू मच. फ्रेंड्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब मीन्स टॉक का यूज करेंगे. नेक्स्ट, द मैन विद द रोजेस लुक्स लाइक योर हस्बैंड. द चाइल्ड इन द पूल स्विम्स वेल. रॉबिन drives a cab. The cricket players runs 5 miles every day. That lady in the pink dress lives across the street. They cooks dinner for their family. The girls walks to school every day.